सो फर्स्ट सीक्वेंस दी है 2 4 6 8 and we have to find which of the following sequences are AP. So to find this sequence as AP, we have to find actually the common difference between the two consecutive terms. So let define T1 equal to 2, T2 equal to 4, T3 equal to 6, T4 equal to 8. So therefore let's find the difference of consecutive two terms. So next term minus previous, T2 minus T1, 4 minus 2 is, again it's 2. Again next consecutive term T3 minus T2, so 6 minus 4 is 2. T4 minus T3, it's 8 minus 6 is again 2. So here common difference is constant for each consecutive pair. Therefore we can say that the common difference D equal to 2, that is constant. Hence given sequence is an arithmetic progression. So in this way we can calculate the whether the given sequence is AP or not. Then they have asked find the common difference, that we have already mentioned. Okay, so this is all about problem number 1. Problem number 2, that is second sequence, 2 comma 5 by 2, 3 comma 7 by 2, and so on. So in this sequence let T1 equal to 2, T2 equal to 5 by 2, T3 equal to 3, T4 equal to 7 by 2. So let's find the difference. T2 minus T1 equal to 5 by 2 minus 2. So cross multiplication से 5 minus 4 upon 2. So it gives you 1 upon 2. Then next T3 minus T2, next minus previous. T3 is 3 minus T2 is 5 by 2. So again cross multiplication, 3 2s are 6 minus 5 upon 2 gives you 1 by 2. Next T4 minus T3, next minus previous. So 7 by 2 minus 3. Again 2 into 3 is 6. So 7 minus 6 upon 2. So it is 1 by 2. So in this way here also we get the difference as constant, that is 1 by 2. So therefore we can say that the given as common difference D equal to 1 by 2 is constant. Therefore the given sequence is an AP, is an arithmetic progression. So third one is easy. Third is homework, that is -10. नोट डाउन करो इसको जिनके पास बुक नहीं. -6, -2, 2 and so on. This is homework. You have to find whether the given sequence is arithmetic progression or not. Problem number 4, that is also simple one, that is 0.3, 0.33, 0.0333 and so on.
तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सी लेट T1 इक्वल टू 0.3, T2 इक्वल टू 0.33, T3 is equal to 0.0333. So let's try the difference T2 minus T1. 0.33 minus 0.3 साइड में यहाँ करता हूँ मैं इसको। देखो 0.33 माइनस 0.3 करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 के नीचे 3, जहाँ नहीं वहाँ 0 दे दूंगा। सो इट इज़ 3 माइनस 0 इज़ 3, 3 माइनस 3 इज़ 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 0, सो इट इज़ माइनस। So higher one is, sorry, this is plus. So higher one is, so we get plus 0.03. Again T3 minus T2, so T3 is 0.0333 minus 0.33. यहाँ पर देखो 0.33 ये बड़ा है, दिस इज ग्रेटर, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये बड़ा है नंबर, ये छोटा नंबर है। सो छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस साइन आने वाला है, तो यहाँ ऑलरेडी मैं माइनस दे देता हूँ। सो यहाँ करते हैं हम 0.0333 माइनस 0.33। देखो पॉइंट के बाद तुरंत नंबर रख देना है, जो नहीं उसको 0 रख देंगे। सो ये 3 दोनों एज इट इज, 3 माइनस 3 इज 0, दिस इज 10। सो 10 माइनस 3, सॉरी हमें बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा, हमें बड़े में से, बिकॉज हम ये तो बड़ा है ना, बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ बड़ा इज 0.33 एंड 0.0333, जो नहीं उसको हम 0 देंगे। यहाँ समझ लो ये येलो कलर जो हाईलाइट किया है, दिस इज बिगर नंबर, बिगर माइनस स्मॉलर करते हैं तो माइनस यहाँ साइन आएगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन हमने यहाँ उतार दिया। सो दिस इज 10, 10 में से 3 गए 7, अगेन दिस इज 9, 9 में से 3 गए दैट इज 6, दिस इज ये होगा हमारा 2, और 2 में से 3 नहीं जाते तो ये 12, 12 में से 3 गए अगेन 9, सो यहाँ पर 2, तो 2 यहाँ रख दिया एंड दिस इज फिनिश्ड। सो अल्टीमेट आंसर इज 0.2967। तो देखा जाए तो यहाँ पर देखो हमारे पास सिर्फ 2 ही डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, और दोनों में देखो ये डिफरेंस मिला 0.03। यस, क्या हुआ बेटा? हेलो, कौन? सारथिका, सारथिका माइक बंद कर बेटा। हो सर। सो आता बघा इथे फर्स्ट डिफरन्स आला 0.03, सेकंड डिफरन्स आला -0.29. So difference is not common. So therefore the difference D is not common, और हम उसे बोल सकते हैं कांस्टेंट। Hence given sequence is not an AP. So this is not an AP. ओके, तो ये इसमें थोड़ा ध्यान में रखना कि ये दिखने में सारे नंबर सेम लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये 3 इस डेसिमल पॉइंट से आगे बढ़ता रहेगा राइट साइड में, तो उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसमें देखो दिस इज ओके, हमने ये ग्रेटर नंबर हमारा ये है 0.33,
तो हमने वो माइनस कर दिया, दिक्कत नहीं आई, ठीक है। सो दिस इज़ पॉजिटिव, नो इशू। बट सेकंड जो हमारा डिफरेंस है इसमें हम स्मॉलर माइनस T3 इज स्मॉलर वन, T2 इज ग्रेटर नंबर, इसलिए हमने ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर किया। तो उसका जो भी हमने यहाँ पर, ये आप थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करो, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम खुद होके सॉल्व करने की कोशिश किया, आपको बताया यहाँ पर कि इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ गलतियाँ होती हैं, डेसिमल नंबर बहुत कंफ्यूज करते हैं आदमी को, तो थोड़ा सा केयर करना यहाँ पर, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 7 लेते हैं हम लोग, ठीक है। 6 आपको आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर देखो सारे नंबर 6 में सेम ही है, -1/5 -1/4। मैं यहाँ पर 5 नंबर और 6 नंबर लिख लेता हूँ, ये होमवर्क कर लेना आपने। 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। तो इसको भी आप ट्राई करेंगे घर पे, 6 नंबर इसको भी ट्राई करो, -1/5 -1/5 -1/5 एंड सो ऑन। तो ये तो बहुत आसान है, इसका डिफरेंस इज 0, ये आप कर लेंगे तो ये AP मिल जाएगा। और ये ऊपर का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आपको AP मिलेगा, दिस इज आल्सो AP। तो आप घर पे ये 5 और 6 ट्राई करो। हम जाते हैं अभी 7 नंबर प्रॉब्लम पे, ये थोड़ा रेडिकल प्रॉब्लम है इसलिए मैं ले रहा हूँ। 3 + √2, अगेन 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीक्वेंस दी गई है। सो लेट्स एज्यूम T1 = 3, T2 = 3 + √2, T3 = 3 + 2 √2, T4 = 3 + 3 √2. So let's begin the difference. T2 minus T1. T2 is 3 + √2 minus T1 is 3. So this +3 -3 cancel. So we get √2. Okay. So next difference calculate करते हैं, T3 minus T2. So T3 is 3 + 2 √2 माइनस, अब यहाँ पर T2 जो है वो भी एक बाइनोमियल है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट करेंगे, +3 √2। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, 3 + 2 √2। ये ब्रैकेट अगर आपने नहीं डाला तो आप गलत हो जाओगे, ध्यान में रखना। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 माइनस प्लस माइनस साइन चेंज करेंगे, सो वी गेट √2। तो यहाँ पर देखो ये +3 -3 कैंसल, तो हमारे हाथ में रहा ट्वाइस √2 माइनस सिंगल √2। तो 2 √2 में से एक √2 गया तो एक √2 बचा। सो फाइनल आंसर इज डिफरेंस इज √2। ओके, गॉट इट। तो ये मिला T3 माइनस T2। अब जाएंगे T4 माइनस T3। सो T4 इज 3 + 3 √2 माइनस T3 इज 3 + 2 √2। अगेन सेकंड जो सब्ट्रैक्शन वाला टर्म है उसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे। सो 3 + 3 √2, ये बेसिक रूल है सब्ट्रैक्शन के, वो फॉलो करना है। सो साइन चेंज हो जाएगा, -3 प्लस का हो जाएगा -2 √2। सो अगेन +3 -3 गेट कैंसल, तो बचा 3 √2, 3 टाइम्स √2 माइनस 2 टाइम्स √2। सो 3 में से 2 गए, 1 बचा, दैट इज √2। तो यहाँ देखो तीनों जो हमने डिफरेंस कैलकुलेट किए, तीनों डिफरेंस में हमें d का वैल्यू कांस्टेंट मिला एंड दैट इज टू बी √2। सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर
the difference d is equal to √2, that is constant. Hence given sequence is an AP. तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। अब लास्ट का जो है प्रॉब्लम नंबर 8, ये भी बहुत आसान है, ये आप लोगों ने खुद करना है होमवर्क। 127, 132, 137 एंड सो ऑन। तो यहाँ क्लियर कट यहीं पर दिख रहा है, 32 माइनस 27 इज़ 5, 37 माइनस 32 इज़ 5, तो डिफरेंस इज डी 5 एंड दैट इज़ कांस्टेंट। तो ये भी AP रहेगा, दिस इज आल्सो AP, ये आप कैलकुलेट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, सो क्वेश्चन नंबर 2 मैं टाइप कर रहा हूँ। राइट एन AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें A दिया है और D दिया है। मीन्स A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, दिस इज A, दैट इज वी कैन से दैट दिस इज T1, और ये तो D आपको मालूम ही है। सो A इक्वल टू 10 दिया है एंड D इक्वल टू 5 दिया है। तो हमें मिनिमम 3 से 4 टर्म्स हमें ढूंढने हैं, तो हमें एक सीक्वेंस बनाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर A इक्वल टू T1 इक्वल टू 10, D इक्वल टू 5, दिस इज गिवन। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज T1, दैट इज 10, मिल गई। T2 क्या होगी? T2 मीन्स अब 10 से T2 5 के डिफरेंस में रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं 10 प्लस 5, या फिर इसको मैं लिखता हूँ फॉर्मूला में प्रीवियस टर्म दैट इज T1 प्लस डिफरेंस D इक्वल टू नेक्स्ट टर्म दैट इज 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। बिकॉज हमारे पास डिफरेंस का फॉर्मूला था, देखो हमने एक पहले सेशन में देखा था, हमने डिफरेंस D इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये हमने देखा था। अब हमें नेक्स्ट टर्म ढूंढनी है, तो प्रीवियस टर्म को यहाँ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, नेक्स्ट टर्म इक्वल टू, ये प्रीवियस टर्म माइनस है, देखो ये माइनस है, इधर जाती प्लस होगी, सो D प्लस प्रीवियस टर्म। तो अब मैंने यहाँ पर वही किया, प्रीवियस टर्म इज T1, D इज द डिफरेंस। तो इसी फॉर्मूला के थ्रू मैंने ये नेक्स्ट टर्म दैट इज T2, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी T2 नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म इज T1 प्लस डिफरेंस, ये फॉर्मूला से मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। तो यहाँ देखो अभी हम T3 नेक्स्ट टर्म करेंगे, तो T3 की प्रीवियस टर्म इज T2 प्लस डिफरेंस इज D। अब T2 हमारे पास है 15, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, 15 प्लस 5 इज 20, आया ध्यान में, बहुत आसान है। और लास्ट टर्म T4, मिनिमम 4 टर्म ढूंढने हैं। T4 उसका प्रीवियस टर्म इज T3 प्लस डिफरेंस दैट इज 20, T3 प्लस D is 5, that is 25. So therefore the sequence is the required
रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज क्या होगी, फर्स्ट टर्म इज 10, सेकंड टर्म 15, थर्ड टर्म 20 एंड फोर्थ टर्म इज 25 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये नेक्स्ट टर्म हमें निकालना है और पूरी सीक्वेंस ढूंढनी है। अब हम जाते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है, a इक्वल टू -3, d इक्वल टू 0। सो हियर a इक्वल टू -3 and d equal to 0, therefore a equal to t1 equal to -3, t2 क्या होगा, previous term plus difference, so previous term is -3 plus 0 is -3, t3 previous term plus 0, sorry that is d, so -3 is t2 प्लस 0 -3। देखो डिफरेंस 0 हमें सब में ऐड करना है, सो देयरफॉर वी गेट द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज -3 -3 -3 एंड सो ऑन। बिकॉज सब में डिफरेंस हम 0 ही ऐड कर रहे हैं तो वही टर्म बचेगा। दैट वाज इजी वन। अब जाते हैं क्वेश्चन इसका सब क्वेश्चन 3, दैट इज a इक्वल टू -7, d इक्वल टू, अब देखो फ्रैक्शनल या रैशनल नंबर में हमें डिफरेंस मिला है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हियर t1 इक्वल टू a इक्वल टू -7, d इक्वल टू 1/2, देयरफॉर t1 इक्वल टू -7, t2 क्या होगा, t1 प्लस d -7 प्लस 1/2, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -7 इंटू 2 इज -14 प्लस 1/2, सो इट इज -13/2। तो ये t2 मिल गया। t3 इज t2 प्लस डिफरेंस, सो -13/2 प्लस डिफरेंस इज 1/2। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का 2 इसलिए -13 प्लस 1/2, सो इट इज -12/2, दैट इज इक्वल टू -6। सो t3 मिला -6। t4 देखते हैं, t4 इज t3 प्लस d, t3 इज -6 प्लस d इज 1/2, again cross multiply, so -6 into 2 -12 plus 1/2, so it is -11/2, -12 plus 1 is -11/2। so इस तरह से हमें therefore the required sequence equal to क्या होगा, पहला इज -7, दूसरा है -13/2, तीसरा है -6, चौथा है -11/2 एंड सो ऑन। सो इस तरह से हमें ये रिक्वायर्ड सीक्वेंस नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की सीक्वेंस मिल गई है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन, a इक्वल टू -1.25, देखो हमारी स्टार्टिंग ही निगेटिव साइड से है एंड डिफरेंस इज पॉजिटिव, तो अब ये जो सीक्वेंस है हमारी पॉजिटिव साइड में इंक्रीमेंट होती जाएगी। थोड़ा इसको ध्यान में रखो कि d का वैल्यू बदलती कैसे कैसे सीक्वेंस पे चेंज होते जा रहा है, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी चाहिए। सो t1 इक्वल टू a इक्वल टू -1.25, t2 इक्वल टू t1 प्लस d दैट इज -125 प्लस 3, ये कितना होगा, दैट इज यहाँ पर होगा 3 में से हम 3.00
माइनस 1.25 करते हैं। देखो 3 मीन्स 3 नहीं है, 3.00 होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, 10 माइनस 5 इज 5, सो दिस इज 9 माइनस 2 इज 7, एंड अगेन यहाँ 2 माइनस 1 इज 1, और तो हमें यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन माइनस 1.25, सो ये हमें मिल गया आंसर 1.75। समझ में आया है? तो ऐसे साइड में आपने करके देखना, कभी ऐसा ओरली करने की कोशिश मत करो। सो T3 इज T2 प्लस D, T2 इज 1.75 एंड D इज 3। अब यहाँ पर बहुत ही आसान है, 1.75 प्लस दोनों पॉजिटिव है, एडिशन में छोटा बड़ा देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा ऐड कर दो। सो इट इज़ 4.75। तो देखो अभी हम पॉजिटिव साइड में बढ़ रहे हैं। पहला टर्म हमारा निगेटिव था, लेकिन ये सब पॉजिटिव में जा रहा है। सो T4 इज T3 प्लस D, दैट इज 4.75 प्लस 3। सो अगेन वी गेट, यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ 4, यही कर देता हूँ प्लस 3। सो अगेन ये 7.5 वैसे के वैसे, 3 प्लस 4 इज 7, सो इट इज 7.75. So therefore the required sequence is minus 1.25, दूसरा है 1.75, तीसरा है 4.75, चौथा है 7.75 एंड सो ऑन। सो इस तरह से हम ये सीक्वेंस ढूंढेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस निगेटिव है, तो ये भी देखने लायक है। यहाँ पर जाते हैं। सो A इज 6, D इज -3। अब ये -3 है, देखो अब तक हमने D का वैल्यू 0 है तो उसका भी सीक्वेंस बना लिया, D का वैल्यू पॉजिटिव है उसका भी सीक्वेंस बना लिया। अब D का वैल्यू अगर निगेटिव है तो वो किस तरह से बिहेव करता है देख लो एक बार। सो A इक्वल टू T1 इक्वल टू 6, सो T2 इक्वल टू T1 प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस, दैट इज T1 इज 6 प्लस डिफरेंस इज -3। देखो हाँ, डिफरेंस माइनस है इसलिए ऐसे ही लिखना, ऐसे आदत रखो तो गलतियाँ नहीं होगी, तो एरर विल बी रिड्यूस्ड, नहीं तो ये प्लस माइनस के झंझट में अटक जाओगे। सो 6 प्लस माइनस -3, 6 माइनस 3 इज 3, T3 इज T2 प्लस D, T2 इज 3 अगेन प्लस -3। अब आपको मालूम है 3 माइनस 3, सो इट इज 0। देखो हमारा T1 था पॉजिटिव, T2 भी पॉजिटिव, अब हम गए T3 की तरफ, दैट इज 0, मीन्स हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। सो जब भी हमारा D का वैल्यू माइनस आएगा, सो आवर सीक्वेंस विल प्रोसीड ऑन निगेटिव साइड, हमारी सीक्वेंस निगेटिव साइड में चलती जाएगी। देखो जैसे कि यहाँ जा रही है T4 देखो T3 प्लस D, सो T3 इज 0 प्लस -3, सो इट इज -3। कोई भी नंबर में 0 ऐड करना मतलब वही नंबर। अब हम यहाँ पर आपके लिए मैं T5 भी कैलकुलेट करता हूँ। सो T4 प्लस D, T4 इज -3 प्लस -3, सो -3 अब देखो सेम साइन आया तो हम क्या करते हैं, साइन ऑफ बिगर नंबर एंड एडिशन ऑफ द नंबर। सो 3 प्लस 3 इज -6। सो यहाँ पर मैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, पहला टर्म हमारा था 6, दूसरा टर्म आया हमारा 3, तीसरा टर्म आया 0, चौथा टर्म आया -3 एंड पांचवा टर्म आया -6 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो पॉजिटिव साइड से हमारी सीक्वेंस बढ़ रही है निगेटिव साइड में। दिस इज बिकॉज आवर डिफरेंस
डी वैल्यू इज निगेटिव। समझ में आया? सो अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस पे किस तरीके से असर करता है ये आप लोगों ने अभी इसमें देखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। a is -19 and d is also minus। हाँ, सो प्रॉब्लम नंबर 6 इज a इक्वल टू -19 निगेटिव 19, d इज -4। तो दोनों में देखो स्टार्टिंग भी निगेटिव साइड में है और डिफरेंस भी निगेटिव, तो ये निगेटिव साइड में ही चलता रहेगा। हम देखेंगे यहाँ हियर a इक्वल टू t1 इक्वल टू -19, सो t2 इक्वल टू t1 प्लस डिफरेंस। So T1 is -19 and difference is plus -4. So -19 -4। यहाँ कितना भी हमें लगे यार ये क्या है प्लस माइनस फिर से लिखूँ, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप यहाँ पर थोड़ा भी लेजीनेस दिखाते हैं तो ये प्लस माइनस आपको खा जाएगा। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, ओके। और ऐसे ही प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। सो यहाँ देखो दोनों सेम साइन, तो साइन ऑफ बिगर नंबर 19 का साइन इज माइनस एंड एडिशन ऑफ दीज नंबर्स। सो 19 प्लस 4 इज 23। सो दिस इज T2, T3 इज T2 प्लस D। सो -23 प्लस -4 -4। So -23 plus -4 sign of bigger number and addition of the number 23 plus 4 is 27। ये हमारे इंटीजर के रूल्स है वो फॉलो करना। T4 is T3 plus D, T3 is -27 plus -4, so it is -27 -4 sign of bigger number addition of number 27 plus 4 is 31। so therefore the required sequence is -19 -23 -27 -31 and so on। all are infinite sequences because इसका एंड हमें उन्होंने कुछ बोला नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 इज। नाउ आई विल राइट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसका मैं टाइपिंग करता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे एक्सरसाइज का कि देयर इज अ गिवन सीक्वेंस 5 1 -3 -7। फ्रॉम दिस सीक्वेंस वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। सो हियर क्लियर कट है। फर्स्ट टर्म इज first term that is equal to a equal to t1 equal to 5। ये तो बहुत ही क्लियर कट सबको मालूम है, दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज़ 5। अब हम जाते हैं सेकंड टर्म। तो अब हमारा कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा? तो दो टर्म का डिफरेंस लेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, दैट इज T2 माइनस T1। So T2 is 1 minus T1 is 5, so we get -4। T3 is -3 minus T2 is 1, so this is T2, so -3 minus 1। So again it is same sign of bigger number and addition of
नंबर, सो 3 + 1 इज 4। ये हमारा फंडा है जब दो निगेटिव नंबर का एडिशन करते हैं। सो T4, अब हमें फिर से एक बार कंफर्म करना है। सो T4 माइनस T3 करते हैं। सो T4 इज -7 माइनस ऑफ -3, T3 इज -3, तो इसलिए मैंने देखो ये माइनस ऑफ -3 क्या, ये भूलना नहीं। हाँ, ये चीज़ आसान है लेकिन गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर। सो -7 + 3 गिव्स यू साइन ऑफ बिगर नंबर, और यहाँ डिफरेंट साइन है तो हम डिफरेंस लेंगे। तो 7 - 3 इज 4। तो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर फर्स्ट टर्म a equal to 5 and common difference d equal to -4। तो इस तरह से ये हमें बहुत ही आसान तरीके से, ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी उन्होंने बहुत सिंपल से प्रॉब्लम दिए है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 और 3 आप घर पे करेंगे, दैट इज़ 0.6, 0.9। जिनके पास बुक नहीं उनके लिए लिख रहा हूँ मैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, सो दिस इज होमवर्क। A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, B एंड D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। 127, 135, 143, 151 एंड सो ऑन। ये भी होमवर्क है आपके लिए। इसका भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 एंड सो ऑन। ये मैं आपको करके देता हूँ। सो सी, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू, बहुत ही आसान है, दैट इज 1/4, क्लियर कट दिख रहा है। सो कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1। T2 इज 3/4 माइनस T1 इज 1/4। So 3 minus 1/4, that is 2/4 equal to 1/2. T3 minus T2, T3 is 5/4 minus T2 is 3/4. So again 5 minus 3/4, so it is 2/4, again 1/2. So T4 minus T3, T4 is 7/4 minus 5/4, so 7 minus 5/4, so it is 2/4, that is 1/2. Therefore first term a equal to 1/4 and common difference d इक्वल टू 1/2। सो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट 3.1 था। जैसे कि we have given 2, 4, 6 and we have to find nth टर्म की जगह पे मैं बोलता हूँ कि 10 नंबर की 10वें पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी, ये मुझे फाइंड करना है। या 100th पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी, दैट इज T100 फाइंड करना है, या T20 फाइंड करना है, T40 फाइंड करना है। तो उस वक्त डायरेक्टली अब हम क्या कैलकुलेट करते बैठेंगे, उसमें डी ऐड करते जाएंगे। ऐसा करते 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 वहाँ तक पहुँचेंगे 1000 टर्म, 100 टर्म, 150 टर्म। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका एक फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड दैट फार्मूला इज कॉल्ड एज TN फार्मूला। वो TN टर्म का फार्मूला हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी, वी हैव T1 इक्वल टू A एंड वी ऑलरेडी फाइंड दैट T2 अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस करते हैं। ये सबको अभी मालूम है, हमने
3.1 में यही किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस किया था। बट व्हाट इज T1, यहाँ पर वैल्यू पुट करते T1 का, दैट इज A प्लस डी। अब D का मतलब क्या हुआ, 1D। कितना D है यहाँ, 1D। अब इस 1 को भी हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, A एज इट इज प्लस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1D आई विल राइट 2 माइनस 1D। अब ये 2 माइनस 1 का भी मतलब क्या होता है, 1। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली 1D आई विल राइट इट एज 2 माइनस 1D। अब T3 में देखो, T3 में भी क्या हो रहा है, T3 मतलब T2 प्लस D। तो यहाँ पर T2 इज व्हाट, T2 क्या है, T2 इज A प्लस ट्वाइस D। 2 बार अगर हमने D ऐड कर दिया, या सॉरी मैं यहाँ पर फिर से इसको थोड़ा इलेबोरेट आपको समझ में आया ऐसा करता हूँ। सो T2 इज व्हाट, T2 इज T1 प्लस D। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2 प्लस D। देखो T2 का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ T2, T1 प्लस D, तो मैंने यहाँ कर दिया प्लस D। दैट उसी का मतलब होता है T1 इज A प्लस ट्वाइस D, A प्लस ट्वाइस D। समझ में आया, ये ट्वाइस D कैसे आया, तो यहाँ से ये ट्वाइस D आ गया, ठीक है। अब ये ट्वाइस D को भी मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूँ। सो A प्लस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 आई विल राइट 3 माइनस 1D। अब ये इस 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है, आगे हमें ये फॉर्मूला देने वाला है। अब अगर देखो यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, T3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D। तो यहाँ देखो हम ढूंढ रहे थे Tn टर्म, क्या ढूंढ रहे थे, Tn। यहाँ पर n का वैल्यू क्या लिखा है मैंने, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, n का वैल्यू इज 3। हियर n इक्वल टू मैंने 3 किया, n मतलब द पोजीशन ऑफ टर्म। ये मैं कौन सी टर्म ढूंढ रहा हूँ, थर्ड टर्म, तो n का वैल्यू इज 3। अगर मैं सेकंड टर्म में n का वैल्यू क्या हो, n इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म में n इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है क्या, तो इसलिए मैंने T3 मीन्स n का वैल्यू इज 3। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, 3 माइनस 1, मतलब मैं जनरल टर्म में इसको लिख सकता हूँ A प्लस, इंस्टेड ऑफ 3 मैं यहाँ n लिख सकता हूँ। देखो यहाँ 3 में n 3 की जगह पे है, यहाँ देखो ये 3 है, मैंने यहाँ क्या किया उसका n, यहाँ पर भी 3 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा n, बाकी सारे नंबर्स है उसको एज इट इज़ रखता हूँ -1 और D। तो मुझे ये फॉर्मूला मिल गया, जनरलाइज टर्म मिल गई। अब सोचो मुझे अगर T5 निकालना है, तो T5 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, A प्लस n का वैल्यू इज 5 माइनस 1 इंटू D। तो इस तरह से मुझे ये जनरल फॉर्मूला मिल गया। अब इसको जनरल वे में लिखता हूँ। जनरल वे में T5 का मतलब होता है Tn, A का मतलब A ऐसे ही रखूँगा, एंड 5 मतलब n लिखा है मैंने, तो n माइनस 1 इंटू D। सो दिस इज व्हाट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग जनरल टर्म। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हम जाते हैं, मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया था, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिया था, हाँ रिपीट तो करने वाला हूँ, थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं कंप्लीट करूँ तब मैं रिपीट करूँगा इसको। देखो हमने यहाँ ऊपर एक एग्जांपल लिया था 2, 4, 6 और वी हैव टू फाइंड T10, बराबर है। मैंने नज़दीक इसीलिए लिया ताकि हम बाद में इसको कैलकुलेट कर पाए। तो एक बार देख लेते हैं इसको, फिर मैं फिर से रिपीट करूँगा, डोंट वरी, ओके। सो देखो मेरी गिवन सीक्वेंस वाज 2, 4, 6 एंड सो वी हैव टू फाइंड T10। तो मैं फॉर्मूला में डालता हूँ
n इक्वल टू 10 दैट इज T10, सो a प्लस 10 माइनस 1 d। तो यहाँ पर a इज 2 एंड डिफरेंस कितना है देखो, 4 माइनस 2 इज 2। सो दिस इज एन AP, मुझे मालूम है मैंने AP लिया है, बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। a इज 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 10 माइनस 1 इज 9, d इज अगेन 2। सो यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस n इंटू 9 इंटू 2 इज 9 2s are 18, so it is 20. So I get T10 equal to 20. Let's find out. चलो फाइंड करते हैं. So T1 equal to 2, T2 equal to 4, T3 equal to 6. So T4 क्या होगा, 6 plus 2 difference, that is 8. T5 equal to 8, T4 plus 2, that is 10. T6 is T5 10 plus 2, that is 12. T7 is 12 plus 2, that is 14. T8 is 14 plus 2, that is 16. T9 is 16 plus 2, that is 18. And T10 is 18 plus 2 is 20. तो आ गया देखो 20। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर इस तरह से वर्क कर रहा है। सो एक बार हम फिर से देखते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। ओके, तो सी क्वेश्चन इज द गिवन एपी इज 12, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, गिवन एपी is 12, 16, 20, 24 and so on, and we have to find T24 equal to what. So therefore we can say n equal to 24. यहाँ पर देखो n का वैल्यू क्या है, 24 हमें ढूंढना है, ठीक है, 24th नंबर की टर्म ढूंढनी है. सो वी हैव फ्रॉम सीक्वेंस वी नो दैट a इक्वल टू 12 फर्स्ट टर्म, डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस इज T2 माइनस T1, दैट इज 16 माइनस 12, सो इट इज 4. सो d का वैल्यू भी मिल गया, d इक्वल टू 4 एंड n इज 24. तो therefore we have to find T24 is equal to question mark. We know the general formula, Tn is equal to a plus n minus 1 d. बहुत आसान है. So T24 will be a is 12 plus n is 24 minus 1 and d is 4. देखो कितना आसान हो गया, 12 plus 23 into 4. So 23 into 4 कितना होता है, 12 plus 92. So T24 equal to 12 plus 92 is 104. So ये हो गया 104. देखो कितने आसानी से निकल गया फर्स्ट फार्मूला, एक सिंपल सा फार्मूला है. देखो क्वेश्चन क्या है, AP is 12, 16, 20, 24, फाइंड 24th टर्म. अब हम इसमें क्या डिफरेंस निकाल के उसमें ऐड करते जाएंगे, तो 24th टर्म इज डिफिकल्ट वन, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो दिया गया है उस पे से हम n का वैल्यू जो पूछा है दैट इज 24th मीन्स n इक्वल टू 24. समझ में आया. तो 24th पोजीशन का टर्म हमें ढूंढना है. सो फर्स्ट पोजीशन की टर्म इज 12, दैट इज a इक्वल टू 12. फिर कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे T2 माइनस T1. ऑलरेडी ये AP है तो कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी दो टर्म लो उनका डिफरेंस निकालो. कोई चाहे तो 20 माइनस 16 भी कर सकता है, उसका भी डिफरेंस 4 ही आएगा. ओके, तो मैंने यहाँ पहले दो टर्म का ही डिफरेंस लिया, दैट इज 16 माइनस 12 4. सो कॉमन डिफरेंस इज 4.
n is 24 and we have to find t 24. तो इस तरह से अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा. वी नो दैट जनरल टर्म इज Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. बस इतना फॉर्मूला हमें याद रखना है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म. सो टी एन की जगह पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और आसानी से हमारी टर्म मिलती जाएगी. सो T24 n का वैल्यू 24 पुट किया इक्वल टू a का वैल्यू 12, अगेन n का वैल्यू इज 24 माइनस 1, d का वैल्यू इज 4. कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाई करो, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है अभी है. ओके, सो 12 प्लस 24 माइनस 1 इज 23 into difference is 4. So again it is 12 plus 92 gives you 104. तो इतने आसान से प्रॉब्लम यहाँ पर दिए गए हैं.